Good morning to all. Now we are discussing the topic of dimensional analysis part 2 in fluid mechanics. लास्ट में हमने डिस्कस किया है, वी आर ऑलरेडी डिस्कस द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस and method is the relay method of dimensional analysis. Now we are discussing in dimensional analysis Buckingham Pi method. Buckingham Pi method, a more generalized method for dimensional analysis developed by E. Buckingham and is the most popular now. This arranges the variable into a larger number of dimensionless groups of the variable because Buckingham used pi to represent the product of variables in each group. We can call the method is pi theorem, Buckingham pi theorem. If n is the total number of variables is dimensionally homogeneous equation containing m fundamental dimensions, then they may be grouped into n minus m pi terms. This is the most important method for analysis of dimension. And हम इसकी बात करें, if there are n number of variables in a dimensionally homogeneous equation and these variables contain m fundamental dimensions and then the variables are arranged into n minus m dimensionless terms. These dimensionless are called pi terms, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है. And when a large number of physical variables are involved, relay method of dimensional analysis become increasingly laborious and cumbersome. Buckingham pi method is an improvement over relay method. Buckingham designated in the dimensionless group by the Greek capital letter. And हम बात करें तो advantage of this method over the relay method is that let us know in advance of the analysis as to how many dimensionless group are to be expected. अब हम इसके जो फॉर्मूलेशन है उसकी हम बात कर लेते हैं. तो इफ n is the total number of variables in a dimensionally homogeneous equation containing m fundamental dimensions, then they may be grouped into n minus m pi terms. तो फंक्शन ऑफ x1 x2 xn तक है इक्वल टू 0. ये एक तरीके से पूरा प्रोसीजर है जो बकिंघम पाई थ्योरम का है. ये प्रोसीजर हमको फॉलो करना होता है. ये प्रोसीजर से ही हम आगे डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन निकाल पाते हैं बकिंघम पाई मेथड से. देन द फंक्शनल रिलेशनशिप विल बी रिटर्न एज फंक्शन ऑफ pi1 pi2 and pi3. It is a dimensionally homogeneous equation containing n variables if there are m fundamental dimensions, and then according to Buckingham pi theorem can be written in the terms of number of pi terms, in which number of pi terms is equal to n minus m. then function of ये निकल के आता है यहाँ पर फंक्शन ऑफ pi1 pi2 pi3. ये हमको करना पड़ेगा. जैसे कि हमको नंबर ऑफ वेरिएबल दे दिए x यहाँ पर, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन फंक्शन ऑफ pi1 pi2 pi3 यहाँ पर निकालना पड़ेगा. और यहाँ पर pi1 pi2 pi3 क्या है, नंबर ऑफ n माइनस 1 की जो वैल्यूज है यहाँ पर वो है. ईच डायमेंशनलेस pi terms is formed by combining m variable out of total number of n variable with one of the remaining n minus m variable. So each pi term contain m plus m variable, and these m variable which appear repeatedly in each of pi terms are consequently called repeating variables, and chosen from among these variables
such that they are together involve all the fundamental dimensions, they themselves do not form a dimensionless parameter. Let us, in the above case, x2, x3, x4 are the repeating variable if fundamental dimensions m mlt equal to 3, then the each terms in written as pi1, pi2 and pi3 की जो हमारे पास फॉर्म है वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर के अंदर सिंपल है, लिस्ट ऑफ ऑल फिजिकल वेरिएबल्स एंड नॉट n एंड m। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सिंपल प्रोसीजर है इसका। पहले तो लिस्ट बनाएंगे कि फिजिकल वेरिएबल कितने हैं, टोटल n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, और m है आपके नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस, MLT, नंबर ऑफ वेरिएबल फंडामेंटल डायमेंशंस। बहुत सिंपल है। कंप्यूट नंबर ऑफ पाई टर्म्स बाय n-1। अब पाई टर्म्स को अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने लास्ट पीपीटी स्लाइड्स में आपको बताया था n-m, तो पाई टर्म्स जो है वो आपको n-m की टर्म में फाइंड आउट हो जाएगी। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, मान लो 6 वेरिएबल है, और m कितने हैं, ये एग्जांपल में हम ले लेते हैं MLT 3 है, तो 6 - 3 मतलब 3। कहने का मतलब है आपके पास जो पाई टर्म आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी, है ना, pi1, pi2 एंड pi3। ठीक है, तो ये आपकी स्टेप फॉलो हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करें, राइट द इक्वेशन इन द फंक्शनल फॉर्म। अब हमको उसको फंक्शनल फॉर्म में लिखना है। फंक्शनल फॉर्म कौन सी है आपकी, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर दिखाया था यहाँ पर, है ना। फंक्शनल फॉर्म की बात करें तो x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, x3, x3 या y इक्वल टू फंक्शन ऑफ दिस वैल्यूज। मतलब कोई भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो फंक्शन की टर्म में आपके पास आ चुका है ना। एंड नेक्स्ट आपकी स्टेप है, राइट इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। इसको जनरल फॉर्म के अंदर लेके आएंगे तो हम क्या कर देंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ऐड अंदर आ जाएगा और फंक्शन के अंदर काउंट हो जाएगा, एंड देन इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में आपको बताता हूँ अभी, ये आपकी जनरल फॉर्म है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जनरल फॉर्म आ चुकी है। ये यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स फॉर्म है ना, फंक्शन ऑफ, तो pi1, pi2, pi3 है, ये आपकी जनरल फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, यहाँ पर ये जनरल फॉर्म टर्म है। अब हमको जब हमने n-m से ये पता लगा लिया कि हमारे पास नंबर ऑफ पाई टर्म कितनी है, pi1, pi2 और pi3, 3 है ना, तो हम उस फंक्शन में pi1, pi2, pi3 पुट करेंगे, है ना। एंड देन आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसीजर है इसका, जिसको सेलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या है, सेलेक्ट द रिपीटिंग वेरिएबल्स। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेलेक्ट द रिपीटिंग वेरिएबल्स, ये वाला। लास्ट जो पीपीटी थी, लास्ट वीडियो था, उसके अंदर मैंने सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स बताया था। यहाँ पर मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। मस्ट हैव ऑल ऑफ m फंडामेंटल डायमेंशंस एंड शुड नॉट फॉर्म ए पाई अमोंग देमसेल्फ। सोल्व दीज पाई टर्म्स फॉर द अननोन एक्सपोनेंट बाय डायमेंशनली होमोजीनियस। Method of selecting the repeating variables. Method for selecting the repeating variables. This is the most important point. First of, depending variables should not be selected as repeating variable. पहली बात तो ये है कि जो repeating variable आप select कर रहे हो, जो बार बार repeat होगा, वो हमारे पास dependent variable नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर्मूला आप कुछ भी ले रहे हो, है ना, जिसका भी फॉर्मूला बना रहे हो, जैसे कि Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, तो जो Q है वो डिपेंडिंग वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको कहा कि V एरिया इंटू वेलोसिटी, जो भी आप वेरिएबल लोगे इसका, हाँ, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, Q डिपेंड करता है इन सब पर। तो इस तरह से हमारे पास Q को अपन रिपीटिंग वेरिएबल के रूप में नहीं ले सकते हैं। रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्टेड शुड नॉट फॉर्म ए डायमेंशनलेस ग्रुप, है ना। And repeating variable together must have same number of fundamental dimensions. To know two repeating variable, कोई भी दो repeating variable आपका
नहीं होगा, शुड हैव द सेम डायमेंशन सेम डायमेंशन का नहीं होगा। और लास्ट में रिपीटिंग वेरिएबल शुड बी सेलेक्टेड टू फॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो रिपीटिंग वेरिएबल्स है उसकी जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले आएगा ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, दूसरा आएगा फ्लो प्रॉपर्टी और तीसरा आएगा फ्लूइड प्रॉपर्टी। ये लास्ट पीपीटी में आपको बता चुका हूँ कि ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ MLT सिस्टम के अंदर L जहाँ जहाँ है वो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी रखता है, सिर्फ L जिसमें सिर्फ L डायमेंशन ही काउंट हो, ठीक है। फ्लो प्रॉपर्टी में आपका L और T सिस्टम, L और T डायमेंशन ही काउंट हो, वो फ्लो प्रॉपर्टी में आएगा और वही आपका फ्लो प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होगा। उसके बाद आपका कोई वेरिएबल बचता है वो आप फ्लूइड प्रॉपर्टी में उसको सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें MLT तीनों डायमेंशंस काउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो फ्लो प्रॉपर्टी में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्चार्ज आ गया, फ्लूइड प्रॉपर्टी में मास डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आ गया। तो इस तरह से हम बात करें तो सबसे पहले हम जो वेरिएबल लेंगे आप रिपीटिंग वेरिएबल, वो वेरिएबल ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी रखना चाहिए। यदि ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं रखता है तो फ्लो प्रॉपर्टी रखना चाहिए, और इसके बाद भी यदि वो फ्लो प्रॉपर्टी भी नहीं रखता है तो फ्लूइड प्रॉपर्टी रखना चाहिए, ठीक है। और इनमें जब हम सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रेफरेंस आपको किसको देनी है। तो ये प्रेफरेंस दी हुई है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल एंड देन फ्लो एंड देन फ्लूइड प्रॉपर्टी। सो वी कैन आगे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो एग्जांपल ले लेते हैं, यूजिंग बकिंघम पाई थ्योरम सो दैट वेलोसिटी थ्रू ए सर्कुलर ओरिफिस इज गिवन बाय। अब हम इसका अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि मैंने अभी तक क्या पढ़ाया है और इसमें हमको कैसे यूज़ करना है। बकिंघम पाई थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन द डायमेंशनल एनालिसिस। V इक्वल टू √2gh फंक्शन ऑफ d अपॉन h म्यू अपॉन ρVh। तो ये आपको यहाँ पर इसका रिलेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, ये शो करना है यूजिंग द बकिंघम पाई थ्योरम से, ठीक है। शो द वेलोसिटी आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है, सर्कुलर ओरिफिस के अंदर। h यहाँ पर हेड है, d डायमीटर है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो मास डेंसिटी है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें कि v इज़ द फंक्शन ऑफ h d म्यू रो g। v इज़ द फंक्शन ऑफ, देखो ये चीज़ तो है, आपको क्लियर है ना ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर v जो है इसके अंदर इस डायग्राम इस इक्वेशन में देखिए आप कि हमको इतने सारे पैरामीटर दे रखे हैं। तो v किस किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर v डिपेंड कर रहा है h d और म्यू रो g, ठीक है, तो इस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर भी। उसके बाद हम बात करें तो v इक्वल टू फंक्शन ऑफ h d म्यू रो g। बिकॉज देखो फर्स्ट लाइन जो है आपकी वो आपको यही लिखनी है, ये स्टेप्स इसकी फिक्स हैं, ये स्टेप्स रिमेंबर करनी होती है। v इक्वल टू फंक्शन ऑफ h d म्यू रो g। एंड देन सेकेंड हम बात करें कि सेकंड स्टेज क्या है, जो आपका डिपेंडिंग वेरिएबल है वो आप फंक्शन के अंदर लेके आएंगे, मतलब इंडिपेंडेंट के साथ लेके आएंगे, वो अंदर हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। ये देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया है। ये हो गया आपका इस तरह से, इस वाली लाइन में फंक्शन ऑफ 1 v h d म्यू रो g इक्वल टू 0। तो ये आपका जो सेकंड स्टेप है, देखो अभी कुछ देर पहले हमने इसका प्रोसीजर पढ़ा था, उस प्रोसीजर में आप चेक कर सकते हो, सेकंड ये स्टेप फिक्स है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ वेरिएबल n इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि इसमें कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए बेटा, 6 हो गए, ठीक है। रिटर्निंग डायमेंशन ऑफ ईच वेरिएबल्स, अब इन सब वेरिएबल्स के हम डायमेंशंस को लिख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं डायमेंशन लिखने में, ठीक है। एंड नंबर ऑफ, अब इस डायमेंशन में आप चेक करेंगे कि हमारे पास इन सभी डायमेंशंस में नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस कितनी है, 3 ही है। नंबर ऑफ फंडामेंटल, भाई इसमें टेम्परेचर का काम नहीं है इसलिए यहाँ पर 3 ही है, MLT यहाँ पर सिर्फ 3 ही है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है प्रोसीजर की वो क्या है, नंबर ऑफ पाई टर्म्स है। नेक्स्ट स्टेप कौन सी है, नंबर ऑफ पाई टर्म्स आ गई n माइनस m। तो n यहाँ पर कितने हैं, 6 वेरिएबल हैं, और जो m है वो कितने हैं, 3 हैं। तो n माइनस m इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ पाई टर्म्स यहाँ पर आपको निकल के आती है 3, मतलब पाई 1 पाई 2 और पाई 3 आगे हो जाएगी ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 इक्वल टू
0, इस तरह से ये आपका निकल गया। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट तैयार हो गया। ईच पाई टर्म कंटेन m+1 variable m equal to 3 and it is also equal to the repeating variables. Choosing h, g, rho as repeating variable, v is being dependent variable should not be chosen as the repeating variable and we can get 3 pi terms. अब देखो इसमें मेनली आपको पाई 1, पाई 2, पाई 3 ये चीज़ें आ चुकी है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन तैयार हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हमको अब पाई 1, पाई 2, पाई 3 की वैल्यू निकालनी है, इनकी इक्वेशन की टर्म निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे देखो, तो सबसे पहले जो हमारे पास वेरिएबल्स आए हैं उनको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, है ना। तो रिपीटिंग वेरिएबल्स, उन सब में आपको रिपीटिंग वेरिएबल चूज करना होता है। रिपीटिंग वेरिएबल चूज करने के लिए सबसे पहले आपने करना क्या है यहाँ पर कि जो पाई 1 है, देखो अभी ऊपर लिखा है बी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो रिपीटिंग वेरिएबल तो होगा ही होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। तो रिपीटिंग वेरिएबल तो ये नहीं होगा। यहाँ पर v को रिपीटिंग वेरिएबल इन्होंने नहीं बताया है क्योंकि ये डिपेंडिंग वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद h, g और रो को इसने रिपीटिंग वेरिएबल, तो सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल में मैंने आपको बताया था पहला जो सिलेक्शन है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी का, दूसरा सिलेक्शन फ्लो प्रॉपर्टी का और तीसरा आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी का, जो कि तीनों की तीनों इसमें एग्जिस्ट करते हैं। देखो रिपीटिंग वेरिएबल है एच, पाई 1, पाई 2, पाई 3 में एच, जी और रो इनके आर्बिट्री A1, B1, C1, A2, B2, C2 और A3, B3 एंड C3 ये रिपीट हो रहे हैं तीनों की तीनों वेरिएबल्स, है ना। यहाँ पर इसमें साफ साफ लिखा है अपने कि एच, जी, रो इज द रिपीटिंग वेरिएबल्स। रिपीटिंग वेरिएबल हमने कौन कौन से लिए हैं, फर्स्ट है जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी रखता है, सेकंड आपने लिया है जो बी की पावर में है, जिसके ऊपर बी की पावर है वो आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टी है यहाँ पर, और जिसके ऊपर जिसकी पावर सी है वो आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टी है, और सेकंड वाला फ्लो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर फिक्स है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पाई टर्म की हम बात करें तो हम लेके आते हैं इक्वेशन को, यहाँ से वापस से शुरू करते हैं। पाई 1 इक्वल टू h1 की h की पावर a1, g इज रेज टू पावर b1 एंड रो इज रेज टू पावर c1 इंटू v। हम क्या करेंगे, इन सब की डायमेंशंस को यहाँ पर लिखेंगे। पाई डायमेंशनलेस टर्म है इसलिए m0, l0 एंड t0। l h हो गया, g की हमने डायमेंशन लिख दी, इस सब इस तरह से हमने डायमेंशंस की नोट कर दी है। इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट ऑफ MLT रेस्पेक्टिवली वी गेट सो हम बात करें तो इन तीनों को LHS और RHS, राइट हैंड साइड में m की पावर और लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर, उसको हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर हम a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम, सो वी कैन सॉल्व एंड वी फाइंड आउट द a1, b1 एंड c1। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यूज निकाल ली है। वैल्यूज निकालने के बाद फिर आप क्या करोगे, इन वैल्यूज़ को वापस से हम पुट करेंगे, जो a1, b1 और c1 की वैल्यू आई है वो हम वापस से इस पाई टर्म में पुट कर देंगे ऊपर a1, b1 और c1 की जगह पर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो पाई 1 का आंसर आया है, जो पाई 1 निकल के आया है वो क्या आया है, v/√gh, v/√gh। सेम वही प्रोसीजर हम अपना रहे हैं पाई 2 के लिए, है ना। तो पाई 2 के लिए भी वही है, जो इक्वेशन दी हुई है वहाँ से इसे लिख देते हैं, वापस से डायमेंशंस इसकी लिखते हैं। डायमेंशंस लिखने के बाद 0 से m की पावर 0 है, इधर m की पावर जो भी है इसको इक्वल कर देंगे, है ना, इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग द कंपोनेंट MLT रेस्पेक्टिवली वी गेट एंड वी फाउंड आउट द arbitrary constant values a2, v2 and c2. Substituting these values in the equation pi 2 term and also we repeat for pi 3 term, the pi 3 equal to h raised to power a3, g raised to power b3 and rho raised to power c3 into mu। MLT सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, वापस से इसको करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पाई 2 की वैल्यू आ गई d/h और पाई 3 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके पास, वही a3, b3 और c3 की वैल्यू पुट करने के बाद कम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम है, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो आपके पास निकल के आती है ये। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास निकल के आती है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पाई 3 की वैल्यू कौन सी निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अब इस वैल्यू के अंदर आप ये चेक करो
कि कहीं ना कहीं पाई वन की वैल्यू काउंटेड हो रही है क्या, काउंटेड हो रही है। ये देखो इधर पाई वन कहाँ है, पाई वन क्या है इसमें वी अपॉन अंडर रूट जी एच है, पाई वन यहाँ पर वी अपॉन अंडर रूट जी एच है। तो पाई वन की वैल्यू वी अपॉन अंडर रूट जी एच यहाँ पर लिख देंगे, पाई वन लिख देंगे। तो हमारे पास पाई वन पाई टू पाई थ्री की वैल्यू, हमारे पास जो इक्वेशन थी फंक्शन ऑफ पाई वन पाई टू पाई थ्री इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन में हम वापस इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपका ये कम्प्लीटली करेक्ट है। इसके बाद इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, फंक्शन की टर्म में लेके आना है वी अपॉन अंडर रूट जी एच, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड, हम प्रूव्ड वी इक्वल टू वैल्यू ऑफ अंडर रूट टू जी एच फंक्शन ऑफ डी अपॉन एच म्यू अपॉन रू वी एच। तो हमको प्रूव करना है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको सेट कर देते हैं वी अपन अंडर रूट जी एच। ये फंक्शन में आ जाएगा, बाकी जो भी टर्म है ये पूरी बची हुई ये पूरी फंक्शन में यहाँ पर आ जाएगी। फंक्शन में लाने के बाद हम इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बकिंघम पाई थ्योरम का ये जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास कम्प्लीटली हो चुका है। ठीक, इस तरह से। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।